Hello friends, welcome to the platform of Darshanik. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik, I am going to discuss with you one strategy regarding UPSC prelims exam of 2024. So guys, as we know, UPSC's prelims exam has been postponed and it's on 16th June. So guys, now only 16 days are remaining for your prelims exam. So in this lecture, I am going to discuss with you how you need to plan your preparation, how you need to plan your study. Okay, so you will be able to get more out of the next 15 days of the preparation. So in this lecture, I am going to discuss with you 15-day strategy for the prelims. So I'm not going to give you guys lot of inputs because 15 days is a very short period, okay, to even start studying any new content, or it's not even possible to revise entire UPSC ka syllabus. It is very vast one. But if you have studied it well till now, then how you can utilize this remaining 15 days effectively and get more output, more outcome, that I'm going to discuss with you. So I'm going to keep my strategy discussion to only 3-4 more important points, okay, regarding technical preparation, and also I'm going to discuss with you 2-3 points, some psychological tips, okay, so you will also be psychologically ready to face the exam, or how you should be managing yourself next 15 days. That I'm going to discuss with you. So only 2-3 points on technical aspect, 2-3 points on psychological aspects we will discuss. So guys, in this next 15 days okay, what you need to study, that I will tell you. But first thing guys, I wanted to begin is that, okay, that don't part. And most important part, don't part that you need to do is, okay guys, stop giving any more mocks now. Stop preparing any more MCQ ka practice, stop doing any MCQ practice, stop doing or solving any more papers. Totally stop any mock practice or test series practice you are doing. Doesn't matter guys how many mocks you have given, how many papers you have solved, okay, doesn't matter. If you haven't solved any or you have solved lot, but next 15 days stop solving any papers, because guys, even if you solve any paper and in the previous paper you are getting very good marks, and unfortunately in that one particular paper if you get less marks, उसके बाद भी you try 2 or 3 more papers, you get good marks, but ये जो एक आध paper में if you get less marks, then that will tremendously impact you psychologically, okay, and that's why 15-20 दिन पहले you shouldn't be doing any more mocks. Okay, अब जितने भी mock practice की, MCQ practice is one of the most awesome strategy for prelims, but now next 15-20 days totally stop giving any more mocks. जितना भी performance आ रहा है आपका previous MCQ practice you have done, mocks papers you have given, okay, that's final now. Now even if you are getting good score in the previous mocks paper, that's good. Even if you are getting average scores, okay, not a big deal. Always remember prelims is only a filter. Okay, CSAT is a qualifying paper and GSK bhi prelim ke marks don't get counted. So it doesn't matter whether you get 20-30 marks above cutoff or you just reach and manage to reach a cutoff or get 1 mark above cutoff. Okay, it's not going to make a difference in your mains ke preparation mein. So prelim is just a filter, and so whatever performance you have been getting on MCQ papers, that's now the final one. Okay, so first most important don't strategy that that you should be doing, okay, stop giving any mocks. Uske baad guys, now next 3 things, do's that you need to follow. So guys, your exam is on 16 June. So guys, 4 दिन पहले before the exam, 12, 13, 14, 15 June, okay, you should only be studying, okay, Lakshmikant और पॉलिटी के जो भी आपके sources है, but only study polity guys. This is very tried and tested method to deal with the polity and one of the strategy for the prelims. Because guys, आप कितना भी polity के preparation पहले से करो, constitution के articles पढ़ो, glitches पढ़ो उसके सारे, you might be a student with very good command over polity का part, you might be a student with political science officer and you think you are very good in polity के part में, still guys, okay, and doesn't matter how many times you have revised polity, but 4 दिन पहले exam के you should be doing polity again. It's very factual in nature और बहुत सारे question तो आने ही वाले, 15 equation कम से कम,
एंड सो इफ अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं तो इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम हिट रेट, गुड हिट रेट, okay, then वो 4 दिन study more polity. It's more factual in nature. If you study it, then okay, you will be able to recall more and more of these facts. Okay, if you are studying 12 hours every day, then at least 7-8 hours on 12, 13, 14, 15 जून study only polity. अगर आपको लगता है पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड है, 2-3 दिन ही पढ़ लो. बट बिफोर एग्जाम जितना पॉसिबल हो, इवन एग्जाम के दिन पे, ओके, मॉर्निंग में एग्जाम के पहले 1-2 घंटे भी आपके जीएस पेपर के कुछ पढ़ना है, देन स्टडी पॉलिटी पार्ट, रिवाइज पॉलिटी पार्ट मोर. ओके, इट विल गिव यू मच बेटर आउटकम, यू विल बी एबल टू गेट मच बेटर रिजल्ट. सो रिमेंबर, वो 4 दिन सिर्फ पॉलिटी का प्रैक्टिस या पॉलिटी का रिविजन. देन उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज 16 डेज जो भी अवेलेबल है, आई टोल्ड यू स्टॉप एमसीक्यू प्रैक्टिस. लेकिन अभी तक आपने जितने भी एमसीक्यू किए, सो किसी ने कम किए हो, पहला ही अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, 2-1000 एमसीक्यू किए, 3000 एमसीक्यू किए, फाइन. जनरली आई टेल माय रेगुलर स्टूडेंट्स हु आर इन टच विथ मी कि एटलीस्ट डू 8 to 10,000 एमसीक्यूज. अगेन मोस्ट ऑफ देम डू दैट. सो अब कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व मत करो, बट आपने अभी तक जितने भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है, सारे पेपर लो, सारे वो बुकलेट्स लो, ओके, और वो सारे एमसीक्यूज को फिर से रिवाइज करो. बट इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ऑल द एमसीक्यूज, इसलिए 15 दिन में. तो इसलिए अब क्या करना है कि वही एमसीक्यू जो आपने मार्क करके रखे होंगे, दैट यू हैव गॉट रॉन्ग या यू वर नॉट एबल टू आंसर देम, ओके, सिर्फ वही एमसीक्यू. हर पेपर में ऐसे 35-40 भी एमसीक्यूज होंगे 100 में से, दैट यू आंसर्ड रॉन्गली और यू कुडंट अटेम्प्ट इट. उनको फिर से रिवाइज करो. व्हाई यू कुडंट अटेम्प्ट इट? बिकॉज यू हैवंट स्टडीड इट, सो दैट वाज एक्चुअली द वीक एरिया. सो सारे पेपर के ओके, सिर्फ वही एमसीक्यू आप ट्राई करो जो आप सॉल्व नहीं कर पाए थे, या सॉल्व करके भी गलत हुआ था, तो क्यों गलत हुआ था इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ो. सो देन यू आर वेरी स्ट्रेटेजिकली फोकसिंग ऑन योर वीक एरियाज. ओके, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है आपने पहले ही एमसीक्यू पेपर में उसको सही आंसर किया है, देन यू डोंट नीड रिवीजन ऑफ दैट. You will be able to manage that in paper. लेकिन जो पार्ट आप एमसीक्यू में गलत कर बैठे थे या अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, उस पे ज्यादा फोकस करो. सो डेली 3-4 घंटे, ओके, आगे के 10-15 दिन, ओके, ओनली इवेल्युएट योर ऑल प्रीवियस ईयर के या बाकी जो भी टेस्ट सीरीज के एमसीक्यूज प्रैक्टिस की थी आपने, इवेल्युएट देम, रीरीड द एक्सप्लेनेशन. ओके, दिस विल गिव यू गाइज एक्सट्रीमली गुड आउटकम. Okay, बहुत इफेक्टिवनेस आपका बढ़ेगा. यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट. यू विल बी एबल टू सॉल्व 4-5 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपने पहले गलत किए थे. ओके, सो इस पे ज्यादा फोकस करना नेक्स्ट 15 डेज. एंड देन लास्ट गाइज, फैक्चुअल करंट अफेयर, साइंस एंड टेक एंड इकोलॉजी एनवायरमेंट का पार्ट. नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट गाइज, करंट अफेयर में ओके भाई, सो करंट अफेयर में गाइज, ओके, कम से कम आपने 12 मैगजीन्स पढ़ी होंगी, और अगर 2 सोर्सेस फॉलो कर रहे हो 24 मैगजीन्स. रिवाइजिंग देम इज नॉट पॉसिबल 15-20 दिन में. ओके, और आप जब एमसीक्यूज इवैल्यूएट कर रहे हो, तो बहुत सारे करंट अफेयर के भी एमसीक्यूज इवैल्यूएट होने वाले, रिवाइज होने वाले. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द करंट अफेयर के मैगजीन्स. बट गाइज, इसमें भी इफ यू वांट बेटर आउटकम, तो जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक का, ओके, 5-6 क्वेश्चन तो कम से कम पकड़ लो, आर गोइंग टू बी देयर ऑन साइंस एंड टेक, और मे बी मोर देन दैट. जनरल साइंस रीजनिंग बेस्ड पार्ट है, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट. लेकिन साइंस एंड टेक का जो फैक्चुअल पार्ट ज्यादा है, यू शुड बी फोकसिंग ट्रिमेंडसली ऑन दैट. इकोलॉजी एनवायरमेंट के जो बेसिक कंसेप्ट्स है, ओके, यू नीड नॉट फोकस ऑन. लेकिन इकोलॉजी एनवायरमेंट का भी जो फैक्चुअल पार्ट है, दैट यू फोकस मोर ऑन. तो आप 24 मैगजीन में आपके पास है, हर मैगजीन का साइंस एंड टेक का पार्ट, हर मैगजीन का इकोलॉजी एनवायरमेंट का पार्ट, सारा रिवाइज करो. और उसी के साथ फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ करंट अफेयर, ओके, कोई रिपोर्ट्स इन न्यूज, पीपल इन न्यूज, पर्सनालिटीज, प्लेसेस इन न्यूज, ये जो सारा पार्ट है, आपने कुछ फैक्चुअल नोट्स बनाई होंगी, फोकस ऑन दीज नोट्स मोर. क्योंकि गाइज, अगर रीजनिंग बेस्ड पार्ट है ना, यू विल बी एबल टू रिकॉल देम. बट गाइज, फैक्चुअल पार्ट्स को रिकॉल करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. अब सी, साइकोलॉजी में जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. एक होता है रिकॉल टेस्ट, एक होता है रिकॉग्निशन टेस्ट. आपकी जो यूपीएससी की मेंस एग्जाम है, इट इज अ रिकॉल टेस्ट. आपको सिर्फ टॉपिक दिया, सब कुछ आपको रिकॉल करके लिखना है. दैट इज एक्चुअली डिफिकल्ट. इसलिए मेंस में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. बट प्रीलिम्स में गाइज, ओके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 4 में आंसर आपके आंखों के सामने है. You just have to recognize which is the correct answer. So recognizing correct answer is actually easy.
भले आपको कोई हिस्ट्री का पार्ट याद नहीं आ रहा हो, लेकिन व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन और उसके नीचे उसके आंसर ऑप्शंस पढ़ते हो, ओके, योर ब्रेन विल हेल्प रिकॉग्नाइज यू वेरी इजीली इफ योर प्रिपरेशन इज गुड. सो रिकॉग्निशन इज मच बेटर. और कंसेप्चुअल चीजें हो तो रिकॉग्निशन इज एक्चुअली ईजियर, लेकिन फैक्चुअल चीजों में उनको रिकॉल करके रिकॉग्नाइज करना इज बिट डिफिकल्ट. इसलिए नेक्स्ट 15 डेज यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन फैक्चुअल पार्ट. उसमें भी साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर के फैक्चुअल चीजों पे यू शुड बी इन्वेस्टिंग मोर एनर्जी. ओके, तो यही एक 3 चीजें यू शुड बी डूइंग. उसके अलावा आपको कुछ वीक एरिया लगता है, वट एवर एज पर योर ओन प्रिपरेशन लेवल, यू फोकस ऑन दैट. लेकिन अभी गाइज यू शुड बी फोकसिंग on these 3 things more, and I don't want to give any extra strategy and burden you with. लेकिन ये 3 बेसिक और मिनिमम चीजें, okay, you should be doing that I wanted to share with you. और उसके बाद one thing that you shouldn't be doing, stop giving mocks. तो ये 3 टेक्निकल चीजें याद रखना. और उसके साथ गाइज I wanted to tell you कि along with this some psychological strategy, psychological tips I wanted to give you. And the first psychological tip that I wanted to give you guys is stop study chats. Now बहुत सारे आप स्टूडेंट्स घर से प्रिपेयर कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ रह रहे होंगे, कुछ करोल बाग, राजेंद्र नगर या अलग देश में अलग अलग सिटीज में कई हॉस्टल पे रह के अपने दोस्तों के साथ प्रिपेयर कर रहे हो. अब गाइज ये 15 दिन आगे के, स्टॉप डिस्कसिंग एनीथिंग रिगार्डिंग स्टडी विथ योर फ्रेंड. ओके, स्टॉप इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स. और अगर आपको कंपैरिजन करने लगोगे, इवैल्यूएट करने लगोगे, दैट माइट डीमोटिवेट यू. ओके, और इसलिए यहां से आगे 15 दिन टेल योर फ्रेंड्स और टेल योर पेरेंट्स नॉट टू आस्क यू अबाउट योर प्रिपरेशन लेवल, या यू डोंट डिबेट विथ अदर फ्रेंड्स अबाउट योर प्रिपरेशन लेवल. अननेसेसरली वो डीमोटिवेशन होगा. ओके, एंड दैट्स व्हाई स्टॉप एनी काइंड ऑफ स्टडी चैट. कुछ भी बात करो, मूवीज पे बात करो, कोई भी एंटरटेनमेंट चीजों पे बात करो, एक दूसरे के साथ कोई रिलैक्सिंग इंस्टाग्राम के रील शेयर करो, बट डोंट डू एनी स्टडी चैट. और ऐसा है कि आप, व्हाई गाइस, अब सपोज आप अच्छे से प्रिपेयर हो, लेकिन आपका लेट से आर्ट आर्किटेक्चर बहुत वीक है, आपके फ्रेंड का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है वो. ओके, और आप वो कंपेयर करके आपको लगता है कि यार मेरा तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत वीक रह गया, एंड यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड. और इसलिए आगे जाके okay, that demotivation will impact your performance. लेकिन गाइज ऐसा भी हो सकता है कि योर फ्रेंड का आर्ट आर्किटेक्चर का एरिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उस साल या 24 के अभी के प्रीलिम्स में आर्ट आर्किटेक्चर पे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए जो आप भी सॉल्व कर पाए. ज्यादा 10-15 क्वेश्चन आए ही नहीं. तो डजंट मैटर आपका वो एरिया वीक था और आपके फ्रेंड का बात काफी स्ट्रांग था, ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी एडवांटेज एंड यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी डिस्कम्फर्ट. इसलिए अब वो फेज नहीं है वेर यू शुड बी कंपेयरिंग योर प्रिपरेशन लेवल एटसेट्रा. हाँ, एक आध कोई बहुत बेसिक डाउट हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा किसी कंसेप्ट रिलेटेड यूपीएससी के टेक्निकल एस्पेक्ट पे, यू कैन आस्क योर फ्रेंड, गेट इट रिजॉल्व. बट स्टॉप एनी अनवांटेड स्टडी चैट. वो पार्ट किया, ये पार्ट किया क्या, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया. Okay, that is not the this is not the 15 days is a time to study any more new things or comparing your preparation with your friend. क्योंकि आप कंपेयर भी करो तो भी 15 दिन में यू वोंट बी एबल टू देन स्टडी दैट पार्ट. यूपीएससी की प्रिपरेशन गोज ऑन फॉर अ ईयर. सो 15 दिन में स्ट्रेस लेके नथिंग इज गोइंग टू हैपन. वट एवर लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू हैव स्टडीड, गो विद दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड फेस द एग्जाम बोल्डली विथ कॉन्फिडेंस. देन उसके बाद गाइज गो फॉर वॉक नेक्स्ट 15 डेज. रात को डिनर होने के बाद विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स एट हॉस्टल, और इवन विथ योर पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड. Okay, go out on walk half an hour and just relax, chill, because next 15 days guys, आप कितना पढ़ते हो it's not going to make a difference. Okay, आप कितना रिवाइज करते हो that's not going to make a difference, but more difference is going to happen how you manage yourself. और इसलिए guys आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, okay, then actually feel good about it, because एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो actually you have prepared well. You have invested your energy in this exam, in the coaching, in the preparation. आपने 1-2 साल डाले हैं and you have done seriously. तो अगर आप committed हो, आपने energy डाली है, you have prepared well, then obviously you will feel anxiety. अगर anxiety stress किसी को हो नहीं रहा ना, then guys he is not taking the exam seriously. Okay, he is not taking his preparation seriously. तो ऐसे students को कभी anxiety stress होगा ही नहीं. आपको अगर anxiety stress हो रहा है, that's actually good. That means you have invested your energy and prepared well. सिर्फ आपको अब ये एंजाइटी स्ट्रेस को मैनेज करना है. और ये स्ट्रेस भी गाइस 2 टाइप का होता है साइकोलॉजी में. एक हम कहते हैं डिस्ट्रेस,
जो विच निगेटिवली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस, और एक होता है यू स्ट्रेस विच इज एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू डू बेटर। तो आपको सिर्फ वो यू स्ट्रेस के जोन में रहना है। तो लिटिल बिट एंजाइटी स्ट्रेस इज नेचुरल एंड जस्ट टू गेट रीड ऑफ दैट, ओके, सेम वही रूम का एनवायरमेंट, वही स्टडी टेबल, वही एटमॉस्फियर, इसमें मत रहो। आधा एक घंटा आफ्टर डिनर गो ऑन अ वॉक। एक सिंपल वॉक का भी एक्सरसाइज विल रिमूव लॉट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स फ्रॉम योर बॉडी, कॉर्टिसोल एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो साइकोलॉजिकली यू विल फील बिट रिलैक्स्ड। सो इसलिए गाइज वो स्ट्रेस एंजाइटी मैनेज करने के लिए मे बी टिल नाउ यू आर स्टडीड 24/7, लेकिन आगे के 15-20 दिन, ओके, जस्ट हाफ एन आवर आफ्टर डिनर गो ऑन अ वॉक एंड चिल आउट, रिलैक्स योरसेल्फ। एंड उसके बाद एक लास्ट स्ट्रैटेजी, अब इसके बाद प्रीलिम से पहले वेदर आई विल मेक अगेन एनी न्यू वीडियो और नॉट, आई डोंट नो, इसलिए आई वांटेड टू गिव वन लास्ट psychological tip to you, that is a simple strategy of deep breathing to deal with anxiety and stress. Guys, everyone faces this anxiety, okay, this stress. अगर यूपीएससी के पहले स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक किया है, दे वांट टू गेट अ नेक्स्ट हायर पोस्ट, आईआरएस आईपीएस से आईएएस में जाना है, अगेन अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, उन स्टूडेंट्स के लिए गाइज इफ दे वांट टू अपीयर अगेन, तो वो भी एक्सपीरियंस करेंगे सेम स्ट्रेस। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आई कैन गो ऑन शेयरिंग दैट, आई डोंट वांट टू एंड यू कैन गो ऑन प्रैक्टिसिंग दोज नाउ। लेकिन दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर विथ यू वेरी वेल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, इवन आई यूज इट व्हेन आई फील स्ट्रेस, दैट इज डीप ब्रीदिंग। तो सिंपली गाइज टेक अ वेरी लॉन्ग डीप ब्रेथ, होल्ड इट 20 सेकेंड 30 सेकेंड, काउंट, होल्ड द ब्रीथ, और फिर okay slowly through your mouth as slowly as possible release the breath, okay, फिर आगे 30-40 सेकंड तक स्लोली उसको रिलीज करते रहो। then keep doing that whenever you feel stress, anxiety, take a deep breath, hold it and release it slowly, okay, it will calm down your heartbeat and automatically आपका entire body it will calm down, your nerves it will calm down। और ये deep breathing guys आगे 15-20 दिन करते रहो, whenever possible, when you feel anxiety पढ़ रहे हो तब कर लो, एग्जाम के 1 घंटा पहले ट्राई डूइंग दैट। और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, व्हेन यू गेट द पेपर, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन पढ़ते हो बहुत डिफिकल्ट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि पैनिक स्टेट में दे मार्क 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन गलत, फिर बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आते हैं, सर 2-3 गलतियां होगी, 2-3 क्वेश्चन गलत से अटेम्प्ट कर दिए, ठीक से पढ़ा नहीं, मिस्टेक कर दी, ये किया वो किया, ओके, ऐसे सिचुएशन में गाइज, एंड दैट डैमेजेस परफॉर्मेंस ट्रिमेंडसली। और ये सिर्फ फर्स्ट सेकंड टाइमर वाले स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 3-4 बार इंटरव्यू दिया है, लास्ट अटेम्प्ट है 6th अटेम्प्ट, और प्रीलिम फेल हो गए क्योंकि 2-3 मिस्टेक्स कर दी, गलती से गलत क्वेश्चन मार्क कर दिए। और इसलिए अगर ये गलतियां नहीं करनी तो सिर्फ यही आपको करना है, साइकोलॉजिकली क्वेश्चन पढ़ो। अगर आपको लगता है पेपर बहुत टफ है, क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो वो काफी टफ है, ओके, डू अ डीप ब्रीदिंग और फिर शांति से फिर से एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन आंसर। डोंट गो ऑन आंसरिंग पैनिक स्टेट, ओके, दिस विल ट्रिमेंडसली विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, याद रखना। और कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, देन अंडरस्टैंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की है और टफ क्वेश्चन आके आपको एंजाइटी हो रही है, देन दैट्स गुड बिकॉज यू हैव स्टडीड वेल। और इफ यू हैव स्टडीड वेल एंड स्टिल एग्जाम इज डिफिकल्ट, देन दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी वो एग्जाम डिफिकल्ट होने वाली है, और जिनका प्रिपरेशन ही काफी खराब है, okay, then they are not going to be in the race, जिनका प्रिपरेशन एवरेज है, they are not going to be in the race with you। लेकिन if you have studied well, okay, or if you face this anxiety, then consider it natural, all of your competitors are going to face the anxiety। Now what going to matter is not technical part, I told you how you manage yourself next 15 days at that moment। तो इसलिए ये डीप ब्रीदिंग याद रखना गाइस, वो तो मैं इन जनरल शुड बी योर लाइफस्टाइल, यू शुडंट बी डूइंग दिस डीप ब्रीदिंग फॉर द एग्जाम, लेकिन अभी एग्जाम में दिस इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन डिप्लॉय टू मैनेज स्ट्रेस, मैनेज एंजाइटी, ओके। सो डू दिस डीप ब्रीदिंग एंड स्पेशली यू रीड अ क्वेश्चन, उसके बाद शांति से एक डीप ब्रीथ लो, फिर से रीड द क्वेश्चन, रीड द ऑप्शंस एंड मार्क द आंसर्स, ओके। सो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू, 3 technical strategy and 3 psychological tips, okay, I don't want to burden with you any more tips. So thanks for listening guys, and before we conclude, okay, just to give you some motivational boost, as I told you guys, if you have prepared well, then anxiety is normal, okay, or if you trust your karmas, if you have studied well, okay,
then anxiety is also normal, but how you manage yourself in that anxiety is important. And that's why ये भगवद गीता का जो सबसे महान मैसेज है, यही याद रख के एग्जाम फेस करना। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच है तो कर्म कहा निष्फल होगा। सो अगर आपने निष्ठा से अच्छे से प्रिपेयर किया, इफ यू ट्रस्ट योर कर्मास, यू हैव स्टडीड वेल, देन डोंट बॉदर योरसेल्फ विद द आउटकम। आपका अगर आपकी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट है, देन गो एंड फेस द एग्जाम बोल्डली। और इसलिए, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहा निष्फल होगा। जस्ट रिमेंबर दैट। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर भी करके जाएंगे, बट आई टोल्ड यू साइकोलॉजिकली इफ यू दे लूज देयर कंफर्ट, देन दैट्स वेरी डैमेजिंग। और वही आपको नहीं करना जो कृष्ण ने भगवद गीता में भी अर्जुन को कहा था, चंचल मन को मनमानी ना करने दो पार्थ, उसे रोको और अपनी आत्मा का अधीन बनाओ। सो बी स्थित प्रज्ञ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट 2 लाइन्स ऑफ भगवद गीता, इनको भी रिकॉल करना। बी काम कंपोज्ड एंड फेस द एग्जाम, बी स्थित प्रज्ञ। सो सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। एंड दिस लास्ट 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सो एक क्षण भी धीरज नहीं खोना। बहुत डिफिकल्ट पेपर है, तो याद रखो सबके लिए डिफिकल्ट है। डोंट लूट कंपोजर, नॉट इवन फॉर वन सिंगल क्वेश्चन। बहुत कॉन्शियसनेस शुड डिक्टेट, योर इंटेलिजेंस शुड डिक्टेट द सर्कल जो आप मार्क करोगे, नॉट योर इमोशंस। एंड दैट उसी पे आप बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से करोगे, बट वो नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन में जो गलती होती है गाइज, दैट एक्चुअली डैमेजेस मोर। और इसलिए वो 5-6 क्वेश्चन में शांत रह के चंचल मन को मनमानी ना करने दो, स्टेटमेंट ये याद रखना। क्षण एक नहीं धीरज खोना, एंड जस्ट रिमेंबर दिस लाइन। और शांति से रीरीड करो क्वेश्चन को। पैनिक में डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, वेट, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आओ 2-3 और क्वेश्चन सॉल्व करके कम बैक टू दैट सेम क्वेश्चन। और शांति से फिर उसको मार्क करना। So that's all for now guys, thanks for listening, and best of luck. And once you face the prelims exam, crack the prelims exam, take 2-3 days का 4-5 days का break and start preparing for your mains. And I always tell guys, my students, cracking prelims is much easier, much tougher than cracking mains. Mains exam is extremely manageable guys. You can very well prepare and manage it. Prelim थोड़ा compared to mains is actually difficult. Mains में you can plan and work, get good marks in essay. You can plan and get good marks in ethics. तो essay में 140-150 आए, ethics में 140-150 आए, और optional में 300 टच कर लिया, your success is guaranteed. और essay और ethics में score करना is possible. So once you crack the prelims, I will be there for you to help you with your essay preparation, ethics preparation. I have already launched ethics course on my Darshanik IAS app. Essay course will also be available by the time your prelims will be done. And so these 2 courses will help you tremendously. And as I tell, they will be one-stop solution. You don't have to study anything else other than my class notes and my class lectures. और उसके बाद I will be taking एक test series का program, mostly focus on essay and ethics with some GS paper also. Now that test series program guys, I won't be taking admissions of lot of students. Max 50-20 students I will enroll, because I evaluate questions paper essay ethics के on my own. I don't like to hire कोई student को जो उसने 2-3 बार attempt दिया है और उनसे feedback लेके student को paper वापस करो. That's I don't think it's a moral ethical, and so I don't have a capacity to evaluate lot of papers. So I will be in this test series will be recruiting very few students. So do enroll for that, and obviously priority will be given to my app students. So there you don't have to bother about anything else. आपके GS के सारा test series का preparation I will get it done. So just now focus on prelims and crack it. Good luck and thanks for listening.